Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is motion and measurement of distance. Before starting this, let me appreciate three students named as Sheikh Ji Master, Zubair Ahmed Sheikh Ji Master, then Arif Natha and Taslima Bhagat. Sheikh Ji Master has given the answer of examples of rectilinear and curvilinear motion. Beta, very good, you are doing well, and please keep it up. And for Taslima Bhagat and Arif Natha has answered correctly that the light year is a unit of distance, not a unit of light or any other quantity. Okay, so you have done very well. Now today, are you ready for the question of the day? Here comes the question. What is the SI unit of time? What is the SI unit of time? You don't have to Google it. I have already answered this question into last video. So those who have listened the last video, they will definitely get the right answer of SI unit of time. Okay. Now, please students participate in such small activity and please gain your knowledge. Okay, those who will going to answer this question, I will declare their name into the next video. Okay, now I am moving for the learning part, that is measurement of length. In the last video we understood that whatever the method the ancestor were using, okay, that was completely inaccurate, and due to that reason the scientists have all over the scientists have decided to build up one measurement system so that all world can be accept it easily. Okay, and it will create the accuracy also. So that method is named as International Standard Unit System, or we can say in a short word SI unit system. Okay, and right now we are going to learn measurement of length. Okay, so SI unit of length is nothing but the meter. Okay, now you have seen that meter tape. If you have a meter tape, just take out and carefully observe it, that whatever the meter tape which is having approximately suppose 100 meter. Okay, so in that you can see that the meter is having total 100 equal divisions, and these 100 equal divisions will going to prepare 1 meter length. Okay, so that equal divisions are what? That are known as centimeters. Okay, still if you are not getting, then we will going to understand by this. Okay, suppose if you are having ruler, 15 centimeter ruler, which you usually have inside the compass box, so just take out and observe it, that start from 0 to 15 centimeter. Okay, how total 150 equal divisions are there? Yes or no? Okay, and it is measured that 0 centimeter, 1 centimeter, 2, 3, 4, up to 50, right? Okay, so what space are there given in between each centimeter? 0 to 1, whatever the divisions are there, that each divisions means millimeter. ओके, एक डिवीजन की क्या होता है? एक डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है. ऐसे 10 जब होंगे तब आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर, और ऐसे 100 सेंटीमीटर जब गैदर होंगे तब आपको मिलेगा 1 मीटर, और ऐसे 1000 डिविजन्स ऑफ मीटर होंगे तब जाके आपको मिलेगा 1 किलोमीटर. मीन्स दिस इज नथिंग बट द कन्वर्शन दैट छोटे से छोटा अभी हम लोग मिलीमीटर ले रहे हैं, इससे छोटा भी आता है मिली एंड माइक्रो एंड ऑल, बट अभी हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में पढ़ रहे हैं. ओके, सो अभी के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है दैट इज मिलीमीटर, जो आपकी रूलर के अंदर 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो 10 इक्वल डिविजन्स है, उसमें से एक डिवीजन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर. ऐसे 10 मिलीमीटर जब गैदर होते हैं तब आपको मिलता है 1 सेंटीमीटर. ओके, एंड जब ऐसे 100 सेंटीमीटर गैदर होते हैं तब जाके आपको मिलता है 1 मीटर. ओके, एंड ऐसे 1 मीटर जैसे 1000 डिविजन्स आपको मिलेंगे तब जाके आपको बनेगा 1 किलोमीटर. ओके, सो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है. सबसे बड़ा अभी कौन है? किलोमीटर, एंड सबसे छोटा अभी कौन है? मिलीमीटर.
ओके, सो ये कन्वर्जन करना है। अभी हमने क्या किया, जब भी अगर हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना हो तो हमें ऊपर वाली चीज देखनी है, और जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें नीचे के एरोज देखने हैं। ओके, सो कैसे? ओके, समटाइम्स सम्स के अंदर आएगा कि आपको कन्वर्जन करना है फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, या किलोमीटर टू सेंटीमीटर, या किलोमीटर टू मिलीमीटर। सो एट दैट टाइम आपको ये फ्लो चार्ट सबसे अच्छे से काम आएगा। ओके, इवन जब भी आप मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर जब नोटबुक में लिखो तो आप लोगों को ये चीज मार्जिन पे आपको लिखनी है। ओके, क्लियर? ओके, सो आई विल स्टार्ट with the first one. ओके, 1 किलोमीटर से हमें किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट पे जाना है। ये चीज याद रखो, जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते हो सो एक ऑपरेशन लगेगा जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, एंड जब आपको छोटे यूनिट से लेके बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो ऑपरेशन लगेगा डिवीजन का। ओके, ये चीज याद रखना। तो अगर आपको किलोमीटर से मीटर में, या किलोमीटर से सेंटीमीटर में, या किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन का। ओके, सो अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, एंड अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब इसका एकदम उल्टा, अगर आपको मिलीमीटर में से सेंटीमीटर में जाना हो तो यू हैव टू डिवाइड बाय 10, एंड अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाय 100, एंड अगर मीटर में से किलोमीटर में कन्वर्जन करना हो तो डिवाइड बाय 1000। ओके, यहाँ पे गिवन है छोटे से एग्जांपल्स कि अगर 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है। सो आप देखो यहाँ पे कौन बड़ा है मीटर एंड किलोमीटर में? यस, किलोमीटर बड़ा है, और जिसमें आपको आंसर फाइंड करना है वो कैसा है? छोटा है। सो जब भी हम बड़े में से छोटे में कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या करना है? कौन सा ऑपरेशन अपनाना है? दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ओके, और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन करना हो तो किससे डिवाइड करना है? सो यू कैन सी ओवर हियर, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो 100 into 1000 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर मतलब कितना? 10,000 मीटर। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कौन बड़ा है? सेंटीमीटर, या जिसमें जो आंसर फाइंड आउट करना है वो बड़ा है, या मीटर है वो क्या है? बड़ा है, और सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। तो जब भी छोटे में से बड़े में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। ओके, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो इसलिए हमें डिवाइड बाय किससे करना होगा? 100 में। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो इधर देखो, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो कितने से करना है? डिवाइड बाय 100। सो आंसर विल बी 1 meter. Understood? Okay, so like this I am going to take one another example, that is the first one. 5 kilometer is equal to dash meter. 5 kilometer is equal to dash meter. कौन बड़ा है? या किलोमीटर बड़ा है, और कौन छोटा है? मीटर। सो अगर हमें बड़े में से छोटे में जाना हो तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? मल्टीप्लिकेशन का। ओके, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? यस, एग्जैक्टली 1000 मीटर। Okay, so over here we can write like in a manner that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 5 kilometer is equal to how much? So we have to apply multiplication. So 5 into 1000 equal to 5000 meter. Okay, 5 kilometer is equal to कितना होगा? 5000। ओके, ये एग्जाम्पल है बड़े में से छोटे में जाने का। अब हम छोटे में से बड़े में कन्वर्जन करेंगे। 100 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? 100 meter is equal to how much kilometer? Okay, so let's see
दैट हमें पता है कि किलोमीटर एंड मीटर के बीच में क्या रिलेशन है कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, सो बड़े में से छोटे में जाना हो तो कौन सा ऑपरेशन इम्प्लाई होगा? दैट इज डिवीजन. और किलोमीटर एंड मीटर के बीच में कौन सा रिलेशन है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000. सो डिवाइड बाय किससे होगा? 1000 से. Okay, so that's why I have written like in a manner that 1000 meter is equal to 1 kilometer. So 100 meter is equal to how much? So ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिवीजन करना है. तो ये तो ये और ये कट, ये 0 एंड ये 0 भी कट. तो बचा कितना? 1/10. और 1/10 को अगर हमें लिखना हो डेसिमल फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं? 0.1. Okay, so 0.1 kilometer. Okay, so I hope you get it by these examples. Okay, in the next video I will going to give you a short exercise for this so that you can easily able to do the conversion. Okay बेटा, conversion चीज ऐसी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा क्लियर होगा. सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल से आपको पता नहीं चलेगा. ओके, और ये चैप्टर्स में सम भी है. सो इसलिए आपको कंपल्सरी प्रैक्टिस करनी होगी. आई विल प्रोवाइड यू वन शीट एंड यू विल गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, चलो नेक्स्ट वन. हाउ टू मेजर लेंथ. हाउ टू मेजर लेंथ. ओके, सो हम कोई भी चीज को मेजर करेंगे तो हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी है. जब हम वो चीजों को फॉलो अप करेंगे तब जाके ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट है वो मिलता है. ओके, सो ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे और ये एक्टिविटी से हम फाइंड आउट करेंगे वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपको अच्छे से करेक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट करना आए. ओके, सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वही चीज जो आपके कंपास बॉक्स में होती है, दैट इज स्केल एंड पेंसिल. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पेंसिल. ओके, आपको शार्पन लेनी है या अनशार्पन, दैट इज योर चॉइस. ओके, अब आपको क्या करना है कि हमेशा जब मेजरमेंट करो तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से. कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से. हमेशा एक पॉइंट है वो पहले 0 पे रखो. 0 पे रखने के बाद फिर वो जहां तक जाती है, सपोज ये यहां तक जाती है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है यू मस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0. लेकिन मैडम अगर हमारी रूलर टूटी हुई हो तो, सपोज अगर आपकी रूलर टूटी हुई है, सपोज यहां से आपकी रूलर यहां से, मतलब इतना पोर्शन है वो टूट चुका है, तो कैसे मेजर करोगे? तो 0 नहीं है तो क्या मेजरमेंट नहीं होगा? नहीं होगा ना. तो फिर आपको ये 2 को क्या अज्यूम करना है? 2 को आपको 0 है वो अज्यूम करना है. ओके, और सपोज यहाँ से पेंसिल स्टार्ट हुई और अप टू यहाँ पे 14 सेंटीमीटर पर खत्म हुई. ओके, सो ये 14 और ये एक्चुअली क्या है? 2. सो 14 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 1, 2. ओके, सो आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी हुई? 12. ओके, लेकिन हमारे पास अभी 0 अवेलेबल है. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अप टू यहाँ तक. सो हमारे पेंसिल का मेजरमेंट कितना हुआ? द एंडिंग पॉइंट जो है वो हमारा रिजल्ट होता है. ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट क्या था? 0. एंड एंडिंग पॉइंट क्या है? 14. ओके, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 14 एंड 0 के बीच का डिफरेंस हमारी पेंसिल की लेंथ को बताता है. ओके, सो द स्पेस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विल गोइंग टू शो यू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल. ओके, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से किया है इसलिए जो भी लास्ट वाला है वो हमारा फाइनल आंसर होता है. 14 माइनस 0 करो तो कितना आता है? 14 आता है. तो आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी हुई?
14 हुई। लेकिन अगर आपकी जो रूलर है वो टूटी हुई है, सपोज यहाँ से 2 से टूटी हुई है, ओके, तो हमें पेंसिल की टिप को यहाँ पे रखना होगा एज अ इनिशियल पॉइंट। फिर यहाँ से रख के सपोज अगर वो यहाँ तक आती है, 15 तक आती है, ओके, सो हमें क्या करना होगा, मैंने अभी बोला लेंथ मतलब क्या, एंडिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट का सब्ट्रैक्शन। सो 15 हमारा एंडिंग पॉइंट है और ये 2 हमारा इनिशियल पॉइंट है। सो हमें क्या करना होगा, 15 minus 2. So what will be the answer? Answer is 13. So 13 क्या है, आपकी पेंसिल की लेंथ है। So सबसे पहला स्टेप आपने क्या सीखा मेजरमेंट में, that you must have to start from 0 and if there is if 0 is not present, then at that time you have to start from the lowest point as a initial point. Clear? ओके, सो यही चीज दिमाग में रखो, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप जब भी रीडिंग करते हो तो रूलर का एंड आपकी आई का जो डिस्टेंस है, जो साइट है, वो पैरेलल होनी चाहिए। मतलब अगर आपके हाथ में रूलर है तो आपकी और रूलर के बीच में पैरेलल डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, फिर अगर आप टेढ़े मेढ़े जगह से देखोगे तो रूलर से आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो हमेशा कैसे देखना है, सीधे देखना है। ओके, आपकी आई दोनों पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब क्या, एकदम सामने होनी चाहिए, तभी जाके आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। अगर आप ऐसे नहीं देखते हैं तो एरर है वो क्रिएट हो सकती है, माइनर, चाहे फिर वो 1 मिलीमीटर की क्यों ना हो। यू माइट हैव क्वेश्चन, मैडम इससे फर्क क्या पड़ता है 1 मिलीमीटर से? बेटा समटाइम्स व्हेनेवर अगर आप मैथ के कोई सम सॉल्व कर रहे हो या ऐसा कुछ है और अगर आपने ऐसे टेढ़े मेढ़े जगह से देखा है, रूलर को सामने आपकी आंख के एग्जैक्ट सामने पैरेलल में नहीं रखा है, सो आपको 1 मिलीमीटर से भी सही, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज थी स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, सेकेंड चीज है कि आपको एक्यूरेटली देखना है, पैरेलल में रख के देखना है ताकि रिजल्ट है वो आपको करेक्ट वाला मिले। ओके, एंड अगर तीसरा पॉइंट ये था कि अगर आपके रूलर में 0 गिवन नहीं है तो उस टाइम पे जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको एज अ 0 अज्यूम करना है। ठीक है, ओके। एंड एक और दूसरी बात कि हमेशा रूलर या मेजरमेंट के लिए जो भी डिवाइस यूज करो तो वो डिवाइस हमेशा आप जो अननोन क्वांटिटी को उससे मेजर करने वाले हो उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब देखो, ये रूलर की साइज कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो वो आप 15 सेंटीमीटर की रेगुलर रूलर से नाप सके। लेकिन अगर बाय चांस अगर ये पेंसिल बहुत बड़ी होती, सपोज लाइक 17 सेंटीमीटर, तो क्या आप इससे मेजर कर पाते? नो। तो फिर उसके लिए आपको कौन सी रूलर लेनी पड़ती? एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर वाली रूलर लेनी पड़ती। तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अननोन क्वांटिटी है उससे बड़ी साइज की मेजरमेंट डिवाइस आपको लेनी है, उससे बड़ी मेजरमेंट डिवाइस आपको लेनी है। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा? पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी कन्वर्जन। ओके, कि what is the SI unit of length, that is मीटर। फिर हमने पढ़ा कि मीटर के भी छोटे बड़े भाई प्रेजेंट है। छोटे भाई मतलब लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़े भाई लाइक किलोमीटर, है ना? सही है ना? सो ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने कन्वर्जन सीखा कि अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो या सेंटीमीटर से मीटर में या मीटर में से किलोमीटर में, तो आपको कौन सा ऑपरेशन और यूज करना है और कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो।
एंड तीसरी चीज हमने पढ़ी कि कोई भी चीज को मेजर करना हो सो कौन से तीन पॉइंट है जो दिमाग में रखने हैं. पहले, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. दूसरी चीज, हमेशा मेजरमेंट टेप या जो भी आप यूज कर रहे हो डिवाइस, वो जिससे मेजर करने वाले हो उससे बड़ा होना चाहिए, अननोन क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए. एंड तीसरी चीज हमने पढ़ी कि हमेशा जब भी मेजरमेंट रीडिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको आपकी जो मेजरमेंट डिवाइस है उसको आपकी आंखों के एग्जैक्ट सामने रखना चाहिए, ताकि कोई भी पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स एरर मतलब क्या? पैरालैक्स एरर मतलब एक या बड़ा, मतलब 1 मिलीमीटर कम या ज्यादा नहीं आना चाहिए. ओके, सो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो रीडिंग होना चाहिए वो अगर ना आए तो उसको पैरालैक्स एरर बोलते हैं. ओके, जो हमारे आई विजन की वजह से क्रिएट होती है. ओके, सो ये चीज दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट टाइम आई विल कम विथ सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी. गेट रेडी फॉर दैट एंड यस, डोंट फॉरगेट टू आंसर दैट question of the day. What is the SI unit of time? Okay, till then just stay happy, keep smiling. Have a nice day. Bye.